little. Today I will teach you midpoint theorem and converse of it. First of all, let's say midpoint theorem. What is midpoint? Let's have some concepts of midpoint. वास्तव में midpoint होता क्या है? यदि हम कहीं देखते हैं कि हमारे पास एक लाइन है AB. Let this line be 6 centimeter in length. यहाँ हमारे पास AB की लेंथ है 6 सेंटीमीटर. AB is equal to 6 centimeter. Then what is the concept of midpoint? If any point that divides AB into two equal parts, if there is point C such that AC is 3 centimeter and BC is also 3 centimeter, then C is the midpoint. If AC is equal to BC, each 3 centimeter, then I can say C is the midpoint of line segment AB. यदि लाइन सेगमेंट AB का मिडपॉइंट C है तो हम एक कंसेप्ट और भी यूज कर सकते हैं. AC is equal to BC, each of these two line segment is equal to half of AB. Or conversely, 2 times AC is equal to AB as well. 2 BC, 2 times BC, 2 length of BC is equal to AB. If I can take 2 lengths of these two, this side BC, then it will be equal to AB. If I take 2 lengths of AC, then it will be equal to AB. So midpoint किसी भी लाइन सेगमेंट का आपको कंसेप्ट देता है. Any point that divides a line segment into two equal parts is called its midpoint. Any point on a line segment, that divides it into two equal parts is called a midpoint. Midpoint. I have given definition of midpoint. और डेफिनेशन से अकेला काम नहीं चलेगा, उसका एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए. So first of all, we have to understand the concept of midpoint. Let's see our theorem. थ्योरम जानने से पहले यदि आपको मिडपॉइंट के कंसेप्ट याद हो गए हैं और समझ आ गए थे, तो अब ये थ्योरम आपको बेहद आसानी से समझ आने वाली है. थोड़ी सी देर ध्यान लगा के बैठिए. The line segment joining midpoints of two sides of a triangle. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle. If I have taken D and E are two midpoints of these two sides AB and AC of a triangle ABC, then the line joining midpoints of two sides of a triangle is parallel to third side. और यहां थोड़ा सा एक्सपेंड कर दूं मैं, and half of it, third side and half of it. Half of it का मतलब है DE will be equal to half of BC. Once again I am taking this statement, the line joining midpoints of two sides of a triangle. This is the line joining midpoints of two sides of a triangle. As D is the midpoint of AB, E is the midpoint of AC, these are two midpoints, and this is the line joining midpoints of two sides of a triangle. So this line is parallel to third side of triangle. You have to prove it. So let's take one by one what is given.
We have been given a triangle ABC, a triangle ABC in which I am taking yellow color now, in which D and E are the midpoints of sides AB and AC respectively. ध्यान दें, हमें ट्राइंगल ABC मिला है। D मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AC का। मिड पॉइंट वही है, D मिड पॉइंट है तो AD इज इक्वल टू BD है। E मिड पॉइंट है AC का तो AE इज इक्वल टू AC है। ये कंसेप्ट मैंने जो पीछे बताया थी वो याद रखने। टू प्रूव, आपको जो बात प्रूव करनी है वो है DE इज पैरेलल टू BC। लाइन DE is parallel to and DE is equal to, यहां हमें DE पैरेलल सिद्ध करनी है, DE पैरेलल BC के और DE हाफ ऑफ BC के प्रूव करने हैं। हालांकि एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट दी हुई है वो हाफ ऑफ इट नहीं है, लेकिन हम इसका भी बार बार यूज करेंगे। अब हम कंस्ट्रक्शन पे थोड़ा सा कंसंट्रेट करें। कंस्ट्रक्शन जब आप हल्की सी करेंगे तो दो तरह से आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। पहला, CF कोई पैरेलल लाइन खींच दीजिए और इस DE को आगे प्रोड्यूस कर दीजिए। लेकिन मैंने जो कंस्ट्रक्शन की है वो थोड़ी सी अलग तरह की है। मैं यहां आपके लिए कंस्ट्रक्शन यूज कर लूं। मैंने हल्का सा ऑल्टरेशन किया है कंस्ट्रक्शन में बुक के हिसाब से। ड्रॉ और यहां एक्सपेंड DE टू F या प्रोड्यूस, ये लाइन DE तो आपको मिलेगी। प्रोड्यूस DE to F such that DE is equal to EF। हमने इस तरह से इसको आगे प्रोड्यूस किया कि ये DE लाइन EF के बराबर हो जाए, यानी F मिड पॉइंट रह जाए DF का। एंड ज्वाइन CF, मैं कलर वही ले रहा हूं, एंड ज्वाइन CF। C और F को हमने ज्वाइन कर लिया। अब हम आएंगे प्रूफ में। प्रूफ देने में बहुत सावधानी आपको बरतनी है, बहुत सावधानी से इसको यूज करिए। इन दो ट्रायंगल्स में देखें, E मिड पॉइंट दिया हुआ था AC का, तो AE इज इक्वल टू EC होगा। हमने कंस्ट्रक्शन की थी DE इज इक्वल टू EF, तो ये दो साइड आपस में बराबर होंगे। ये एंगल और ये एंगल आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मैं भी लिखूंगा इसे। तो यहां हम ट्रायंगल ले रहे हैं ADE और CEF। यहां इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल CEF, देखें क्या क्या चीजें इक्वल हैं।
मेरे पास अब नीचे से फिगर आ गई है, मैं इनका यूज करूंगा, ध्यान देना। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड सी ई एफ, क्या मैं लिख दूं ए ई इज इक्वल टू ई सी? कारण था E is the midpoint. E is the midpoint of AC. इस कारण से हमने लिखा AE is equal to EC. कंस्ट्रक्शन में हमने किया था प्रोड्यूस DE to F such that DE is equal to EF. सो हम यहां लिखेंगे, हमने कंस्ट्रक्शन की थी DE is equal to EF, ये हमने कंस्ट्रक्शन की थी। आप एक और प्रूफ ले सकते हैं और वो है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। Therefore these two triangles are congruent. तो हमारे पास जो ट्रायंगल हैं वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, यानी ADE। Therefore triangle ADE is congruent to triangle CEF. यदि ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं बाई SAS, तो CPCT से मैं यूज कर सकता हूं AD is equal to CF. Therefore AD is equal to CF, CPCT AD is equal to CF, क्योंकि ये ट्रायंगल आपस में यदि कॉन्ग्रुएंट थे तो ये साइड और ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड थी। लेकिन हमें मिला है, साथ साथ यूज कर रहा हूं BD is equal to AD, but BD is equal to AD मिड पॉइंट के कारण। This line BD was equal to AD as D is the midpoint, and AD is equal to CF. Here AD is equal to CF. यहां आप कारण लिख सकते हैं D is the midpoint. D is the midpoint इनके लिए, और AD के इक्वल CF था, इस वजह से मैं ये तीनों लाइनें इक्वल ले रहा हूं। अब AD को मैं यहां से छोड़ रहा हूं, BD इज इक्वल टू CF। यहां देखें ये ग्रीन लाइन हमारी इक्वल आ गई। यदि ये दो लाइन इक्वल हैं तो अब की बार हम CPCT से एक सिद्धांत और ले रहे हैं, और वो ले रहा हूं मैं एंगल 3 इज इक्वल टू 4 CPCT। एंगल 3 इज इक्वल टू 4, बट एंगल 3 इज इक्वल टू 4, ये भी CPCT के कारण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। बट दीज आर, look at, these are alternate angles. These are alternate angles, alternate interior angles. Therefore AD parallel shear, therefore AD parallel CF. I can write, if AD is parallel to CF, then BD is also parallel to CF, as AD and BD is the same line. मैं इस AD की वैल्यू बदलता हूं, BD is parallel to CF. Now look at these two expressions, relation 1 and 2. यहां ये रिलेशन हमें देते हैं, यहां मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा, from 1 and 2, from 1 and 2, BD is equal and parallel to CF.
In this quadrilateral BCFD, a pair of opposite side is equal and parallel, therefore BCFD is a parallelogram. Therefore BCFD is a पैरेललोग्राम। ये हमारे पास पैरेललोग्राम आ गया। अब पैरेललोग्राम आते ही क्या मैं लिख दूं, BC and DE आर पैरेलल। तो यहां अब हम इस कोशिश में आएंगे कि DF पैरेलल BC अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब मैं यहां कोशिश कर रहा हूं, हमारे पास आ गया क्वाड्रिलेटरल BCFD इज ए पैरेललोग्राम। इससे आगे मैं नई फिगर आपकी ले रहा हूं। अब इस फिगर में देखें, यदि ये पैरेललोग्राम है तो BC पैरेलल DF है, BC पैरेलल DF। Therefore BC is parallel to DE as DF and DE is the same line। पैरेलल लाइन में चाहे पार्ट हो, ये लाइन पूरी की पूरी पैरेलल थी BC के, तो ये वाला हिस्सा भी DE पैरेलल BC होगी। सो पैरेलल तो हमारा सिद्ध हुआ। अगेन बहुत सावधानी से देखें, BC इज इक्वल टू DF एंड DF इज इक्वल टू 2DE। कारण E इज द मिड पॉइंट। तो यहां यदि हम लिखें, यहां मैं लिख रहा हूं अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम के कारण, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और यहां भी अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, और ये मिड पॉइंट। दो आप अलग अलग लिख सकते हैं, मैं एक हिस्से को हटा देता हूं पहले। BC इज इक्वल टू DF। यहां इस हिस्से को आप लिख सकते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब हम करने क्या जा रहे हैं, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ DF। तो DF की जगह BC बदल दीजिए, DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC एज वेल, क्योंकि DF और BC आपस में बराबर हैं। DF और BC आपस में पैरेलल भी हैं और इक्वल भी। तो पैरेलल लाइन तो आप सिर्फ DE पैरेलल BC करेंगे, और हाफ का रिलेशन भी DE का ही लेना है, ना कि DF का। DF इक्वल है BC के। हमने कंस्ट्रक्शन की थी कि DE के बराबर EF आगे बढ़ाया था, ये आपको समझ लो। यहां आप लिख सकते हैं हैंड्स रूट, क्योंकि अब DE पैरेलल BC भी हो चुका है और DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC भी हो चुका है। ये इस तरह से आपने इसका प्रूफ देना है। अब कितने इफेक्टिवली आप इसे दे पा रहे हैं, अब मैं अगली टर्म ले रहा हूं विच इज कन्वर्स ऑफ इट, जो ठीक इसकी उल्टी है। द लाइन ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट्स द थर्ड साइड। यहां देखें ट्रायंगल ABC में D मिड पॉइंट है, अब की बार केवल E is not given any midpoint, D is midpoint and this line is parallel to BC। So given में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा, D is midpoint of side AB of triangle ABC। D is the midpoint of side AB of triangle ABC। From D, a line DF और DS जो भी आप आगे कर लें, from D DF is drawn parallel to BC। BC लाइन ध्यान में, BC ये है,
इसके पैरेलल हमने ये लाइन आगे खींची, दैट इंटरसेक्ट्स AC at E। आपको प्रूफ देना है इस चीज का, टू प्रूफ है आपके लिए, E will be the midpoint of AC। E is the midpoint of ध्यान दें, E is the midpoint of का मतलब है यदि हम AE is equal to EC प्रूव कर दें या AE is equal to half of AC प्रूव कर दें, then E will be the midpoint। मैंने थ्योरम्स के स्टार्ट में ये आपको बताया था। सो हल्की सी कंस्ट्रक्शन आ जाइए। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, फ्रॉम सी ड्रॉ CF पैरेलल AB that intersect DF at F, जो DF लाइन को F पर काटती है। आप ये लाइन और भी कोई पॉइंट ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, मैं सेम ले रहा हूं। यानी ये लाइन आपने पैरेलल खींची थी, लाइन है ये, यहां से आपने C से पैरेलल लाइन खींची AB के, जो D से खींची हुई पैरेलल लाइन को F पर काटती है। आप ये दो लाइन अलग अलग नाम दे सकते थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रूफ में आएंगे। प्रूफ में आने से पहले दो तीन बातों का बहुत सावधानी से यूज करिएगा। अब आपको सिर्फ AD इज इक्वल टू BD मिला है। यू आर गिवन दीज टू पैरेलल लाइंस, ये आपको पैरेलल लाइंस मिली है, ये लाइन पैरेलल है इसके। तो यहां देखें आप क्या करना चाहते हैं। क्या हमने प्रूफ में मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत अच्छी तरह से समझाऊं। क्या हमने BD पैरेलल CF खींचा, क्या ये लाइन इसके पैरेलल खींची, मैं इसको मार्क कर देता हूं ग्रीन। क्या हमारी ये लाइन जो AB पैरेलल CF हमने खींची थी, तो क्या ये दो लाइन पैरेलल हैं। मैं यहां लिख रहा हूं BD पैरेलल CF कंस्ट्रक्शन, DF पैरेलल BC गिवन, DF पैरेलल BC गिवन, therefore BCFD is a parallelogram। ध्यान दें, ये लाइन इसके पैरेलल थी, ये लाइन इसके पैरेलल हो गई है, इस वजह से BCFD पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम होते ही, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ गई, तो हम यहां अपोजिट साइड्स पैरेलल होने के कारण ये पैरेललोग्राम है। और अब हम ले सकते हैं BD इज इक्वल टू CF, therefore BD इज इक्वल टू CF। लेकिन क्या आप जानते हैं D मिड पॉइंट था AB का, तो BD इज इक्वल टू AB एज वेल। ये था D इज द मिड पॉइंट, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। इस वजह से AD इज इक्वल टू BD था, और BD इज इक्वल टू CF, दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, क्योंकि BCFD पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो यहां से मैं अब लिखूंगा, BD को छोड़ देता हूं, AD इज इक्वल टू CF यूज कर रहा हूं। नाउ आई एम यूजिंग दीज टू, आई एम लिविंग BD, therefore AD इज इक्वल टू CF। यहां आ जाइए, इस फिगर में आपने देखा BD साइड CF के पैरेलल थी, तो AD भी पैरेलल हुई फिर CF के,
अब BD इज इक्वल टू AD थी और BD इज इक्वल टू CF था, तो फिर AD भी इज इक्वल टू रहा CF के। यहां हमने ये बात प्रूव कर दी कि AD इज इक्वल टू CF है, ये लाइन इसके इक्वल है। और बाकी पैरेलल लाइंस हैं, ये पैरेलल भी है क्योंकि AD पैरेलल CF था। तो अब सावधानी बरतिए, मैं यहां लिख रहा हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 is equal to angle 2. These are alternate interior angles. Alternate interior angles. कारण था AB पैरेलल CF था। अब हम इन एंगल्स को भी इक्वल ले सकते हैं। एंगल 3 is equal to 4. These are also alternate interior angles. Angle 3 is equal to angle 4. तो सावधानी से देखें इन ट्राइंगल्स को। इस वजह से ADE CFE, therefore triangle ADE is congruent to triangle CFE by ASA। दो एंगल और एक साइड आपस में हम इक्वल कर चुके। अब यदि ये कॉन्ग्रुएंट हैं तो मैं यहां लिख सकता हूं देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC, देयरफॉर AE इज इक्वल टू EC, CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। यदि ये साइड आप इसके बराबर कर चुके तो आपकी थ्योरम प्रूव हो चुकी है। हेंस E is the midpoint of AC, hence proved।